Namaskar. In this series of the geomorphology, today's our topic is forces. Today's topic is forces. These forces involved in nurturing, in shaping, in designing the earth surface, different plant forms, is structures. Somewhere we find even surface, somewhere we find undulating surfaces, somewhere plain, somewhere plateaus, somewhere mountainous and difficult terrains, lakes, ponds, etc. These are designed, shaped, nurtured by these forces. These forces work regularly, simultaneously, millions of the years, billions of the year in shaping, in designing the upper crustal blocks of the earth surface. आज हम बातें करते हैं फोर्सेस के बारे में। ये फोर्सेस, ये बल जो है सालों साल, कई मिलियन और बिलियन साल से अर्थ के जो ऊपरी हिस्सा है, जो परपट्टी या पपड़ी है, उसकी शक्ल को, सूरत को बनाने में, बिगाड़ने में या उसको लेबल करने में काम करती रहती है। इन्हीं फोर्सेस के बारे में हम बातें करते हैं। These forces can be divided into two parts. One is the endogenetic forces. Another is exogenetic forces. Exogenetic forces. Endogenetic forces means अंतर्जात बल. Exogenetic force means बहिर्जात बल. The exogenetic forces can further divided as a weathering, बहिर्जात बल, and weathering. And next one is mass movement, यानी कि लैंडस्लाइड etc. Mass movement. Next one is weathering, mass movements, and erosion. Next one is erosion. Erosion. Exogenetic forces can further be divided: weathering, mass movement, and erosion. These forces work over the surface. The basic energy या force driven energy driven by the sun. Sun is the major source of energy of these processes, of these work. These work involve in shaping, in designing the upper crustal blocks of the surface. Almost they are labeling and making the surface plane या penny plane या like that structures. So almost they are labeling the surface. So we have discussed all these three in detail in the last our videos. Today we will discuss regarding the endogenetic forces that can be यानी अंतर्जाती बल, that can be further divided as a sudden force and diastrophic force. Sudden force and diastrophic force. तो one is the sudden force. Sudden force का मतलब आकस्मिक बल. Sudden force यानी आकस्मिक बल. Sudden forces यानी आकस्मिक बल. Next one is the diastrophic forces. Diastrophic forces means दीर्घकालिक बल. Diastrophic forces यानी कि दीर्घ, डायस
ट्रॉफिक फोर्सेस यानी कि दीर्घकालिक कालिक बल। जो सडन फोर्सेस है ये फर्दर डिवाइड किया जा सकता है अर्थक्वेक, नेक्स्ट वन इज द वोल्केनो या वॉल्केनिक इरेप्शन या वॉल्केनोस। द डायस्ट्रॉफिक फोर्सेस that is the slow forces दीर्घकालिक बल, it can be further divided as the epirogenetic forces and orogenetic forces. It can be further divided as the epirogenetic forces as well as the epirogenetic forces epirogenetic forces and orogenetic forces. Orogenetic forces. The epirogenetic forces further divided as the upward and downward forces. The orogenetic forces further can be divided as the compression force and tension forces. Compression force and next one is टेंशन फोर्स। स्पेस कम होने की वजह से दिक्कत आ रही है लिखने में। अब ये जो इसके बारे में हम बातें करें, द एक्सोजेनेटिक फोर्सेस वर्क ओवर द सरफेस बिलियंस ऑफ द ईयर्स इन शेपिंग इन मेकिंग द सरफेस इवननेस एंड इट्स मेक द सरफेस स्मूथ। जो भी सरफेस पे अर्थ पे रग्डनेस है, अंडुलेटिंग सरफेस है, उसको ये प्लेन में कन्वर्ट करती है। इसका बेसिक सोर्स एनर्जी का जो है सन है, और जो भी इसके अंतर्गत क्लाइमेटिक फोर्सेस हैं, क्लाइमेटिक फैक्टर्स हैं, क्लाइमेटिक एक्टिविटीज़ हैं, जैसे कि रेनफॉल, विंड एंड प्रेशर, उसके अलावा जो है फ्रॉस्ट, सनशाइन। So these are the major agents that play role in shaping the surface of the earth. So we have discussed detail all these forces. Now we will discuss today endogenetic forces. इसको इसलिए मिटा दिया जाता है। अब आते हैं endogenetic forces. These endogenetic forces work billions of the years inside the earth, in the depth of the earth, but they work regularly and its effect can be noticed, can be discernible after the result of the any shape of the earth. जब किसी भी अर्थ के ऊपर कोई भी डिज़ाइन या शेप बनता है, तो उसकी कोई भी रूप या रेखा जब हमारे सामने उसका रिजल्ट या आउटपुट दिखता है, तब हम पता कर पाते हैं कि ये एंडोजेनेटिक फोर्सेस के कारण हुआ। जबकि ये फोर्सेस इनसाइड अर्थ के काम करती रहती है। ये एंडोजेनेटिक फोर्सेस में ये फोर्सेस क्रिएट कैसे होती है, उसके कारण क्या क्या हैं, इसके बारे में अगर हम बातें करें तो इसके क्रिएशन के कारण क्या हैं कि अर्थ में के अंदर यानी कि सरफेस के जहाँ पे हम रहते हैं उसके अंदर भीतर वो फोर्सेस जो सालों साल रेगुलर काम करती रहती हैं, उन फोर्सेस के बारे में अगर हम बातें करते हैं तो वो फोर्सेस क्यों क्रिएट होती हैं, कैसे क्रिएट हो जाती हैं, व्हाट आर द मेजर फैक्टर्स दैट क्रिएट द एंडोजेनेटिक फोर्सेस इनसाइड द अर्थ। तो नंबर एक, द रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस। नंबर दो पे प्राइमोर्डियल हीट इनसाइड अर्थ या ट्रेप्ड इनसाइड द अर्थ।
रोटेशन एंड रिवोल्यूशंस ऑफ द अर्थ, या दूसरी भाषा में कहा जाए मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ, gravitational forces of the earth. These are the major elements, these are the major aspects that generate these forces. इनके कारण ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस, कॉन्वेक्शनल करंट्स, रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस का मतलब कि जैसे यूरेनियम है, थोरियम है, पोटेशियम है, इसका रेडियाई या रेडियो एक्टिवनेस, इसके कारण जो है ये फोर्सेस क्रिएट हो सकती हैं. प्राइमोर्डियल हीट ट्रैप्ड इनसाइड द अर्थ अर्लियर वाज द पार्ट ऑफ द सन व्हेन इट स्प्लिट्स, व्हेन इट्स डिवाइडेड, या व्हेन इट्स मतलब ये जब अर्थ जो है सन का कभी हिस्सा हुआ करता था, तो ये जब अलग हुआ तो उसके अंदर जो है सन के ऊपरी हिस्से वाली जो हीट है ऑलमोस्ट इनसाइड अर्थ के यानी सेंटर में वही हीट आज भी ट्रैप है. ऊपरी हिस्से का टेम्परेचर 6000 है, सरफेस पे जो सन का सरफेस है, अर्थ का जो सेंट्रल पॉइंट है वहाँ पे भी टेम्परेचर ऑलमोस्ट 6000 है. इसका मतलब कि जो सन के अंदर ऊपर वाली जो हीट थी, अर्थ के अंदर कुछ ना कुछ हीट आज भी ट्रैप्ड है, बची हुई है. इन हीट और इसके कारण जो है कॉन्वेक्शनल करंट भी क्रिएट होता रहता है अर्थ के अंदर. ये जो कॉन्वेक्शनल करंट है कहीं ना कहीं एक तरह से हीट को जनरेट करती है या फोर्सेस क्रिएट करती है, एनर्जी का काम करती है. अर्थ का अपना रोटेशन और रिवोल्यूशन का मूवमेंट्स है, उसके कारण जो है इसमें फोर्सेस क्रिएट हो सकती हैं. ये फोर्सेस साल भर रेगुलर काम करती रहती हैं. कभी ये यकायक स्पॉन्टेनियसली हमारे सामने अर्थ सरफेस पे आती हैं तो उसको सडन फोर्सेस कहते हैं. तो these are the fastest forces, these work very rapidly, these can be seen from the output या result, and these processes can be seen from the bare eyes. Their output is the earthquake and volcanic eruptions. तो sudden forces यानी यकायक forces ये काम करती हैं. डायस्ट्रॉफिक फोर्सेस का मतलब कि दीर्घकालिक बल, यानी कि बहुत स्लो मोशन में ये फोर्सेस काम करती हैं. दीज फोर्सेस कैन नॉट बी नोटिसेबल, कैन नॉट बी डिसर्नेबल. द रिजल्ट्स एंड आउटपुट्स कैन बी कन्फाइंड और आइडेंटिफाइड. इसका रिजल्ट्स ही ओनली पता किया जा सकता है क्योंकि ये फोर्सेस रेगुलर सालों साल काम करती रहती हैं. इस फोर्सेस से हम आँखों से या वैसे हम महसूस कर नहीं सकते, लेकिन इनका जब कोई रिजल्ट आता है तभी उसको हम पता कर सकते हैं. उसका रिजल्ट क्या है कि जब कोई भी माउंटेन बिल्डिंग हुआ या कोई माउंटेन बन गया या कोई कॉन्टिनेंट हमारे सामने बन करके आया, ये फोर्सेस भी रेगुलर आपका काम करती रहती हैं. इसका स्पीड इतना स्लो होता है बट बहुत ही स्मूथ वे में इसका वर्क होता है. इसको फर्दर हमने डिवाइड किया epirogenetic forces and orogenetic forces. The epirogenetic forces is the vertical force. These work vertically. Epiro means continent. Genetic means origin. Origin of the continent. The forces which involve in the origin of the continent known as the epirogenetic forces. These forces either emerged या uplifted या upward or subsided or downward or downgraded the crustal block of the earth surface. The epirogenetic forces, जो epirogenetic force है यानी कि इसको हम कहते हैं कॉन्टिनेंट बिल्डिंग यानी महाद्वीपीय निर्माणकारी, यह लंबवत संचालन होती है और ये बहुत ही लंबे समय तक ऐसे धीरे धीरे काम करती रहती है. ये वर्टिकल होती है, इसका काम वर्टिकल होता है यानी कोई भी क्रस्टल ब्लॉक्स को या तो ऊपर करेगी इमरजेंस या सब्सिडेंस. जैसे कि इंडियन कोस्ट है, हमने बताया कहीं कहीं पे इंडिया का कोस्ट जो है सबमर्ज है और कहीं कहीं इमर्ज है. तो ये इमर्ज जब कोई कोस्टल ब्लॉक होता लैंड सरफेस को अगर इमर्ज कर दिया जाए पास वाले हिस्से से ओशनिक ब्लॉक से तो वो लैंड सरफेस कहलाएगा. पास जो सबमर्ज हो जाएगा वो ओशनिक ब्लॉक हो जाएगा यानी कि
वाटर वहां पे अगर एक्यूमुलेट हो जाए, जमा हो जाए। तो ये ओशन और कॉन्टिनेंट्स बिल्डिंग में ये काम आती है, इसीलिए इसको इपीरोजेनेटिक फोर्सेस कहते हैं। दीज फोर्सेस वर्क वर्टिकली। दीज फोर्सेस इधर certain blocks of the surface या crustal block of the surface emerged or certain block subsided, that is submerged, या upwarping and downwarping। तो ये वर्टिकल फोर्सेस होती है, वर्टिकल काम करती है। ओरोजेनेटिक फोर्सेस, ओरो मीन्स माउंटेन, जेनेटिक मीन्स ओरिजिन, origin of the mountain, the forces which involve in the origin of the mountain। through these forces we can confine the origin of the mountain। the orogenetic forces, since the initial times of the earth, since the evolutions of the earth till now, 9 times orogeneity orogeny has been occurred, had been occurred। जब से अर्थ का वजूद हुआ तब से लेकर के आज तक 9 बार ये ओरोजेनेटिक फोर्सेस काम कर चुकी हैं, जिसमें से 3 बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक तो कैलेडोनियन माउंटेन बिल्डिंग, दूसरा हर्सिनियन माउंटेन बिल्डिंग, तीसरा हमारा जो है अल्पाइन माउंटेन बिल्डिंग है। दीज आर द ओरोजेनेटिक फोर्सेस। इसको अगर हम मिटा करके यहां से फिर से स्टार्ट करें, ये इपीरोजेनेटिक फोर्सेस हो चुका, ये ओरोजेनेटिक फोर्सेस। These orogenetic forces work horizontally, they are moving parallel to the crustal blocks। ये ओरोजेनेटिक फोर्सेस, ओरो मीन्स होता है माउंटेन, जेनेटिक मीन्स होता है ओरिजिन, ओरिजिन ऑफ द माउंटेन या माउंटेन बिल्डिंग। इन अदर वर्ड्स वी कैन से माउंटेन बिल्डिंग। These orogenetic forces working regularly, but sometimes its force occurred in a very massive movements, in a very drastic and brought a very drastic changes, that is known as the upheaval। कभी कभी ये फोर्स, ये साल भर ये फोर्स काम करती रहती है, रेगुलर काम करती रहती है, लेकिन इसका वर्क कभी कभी बहुत ही मैसिव लेवल पे होता है और ये बहुत बड़े लैंड सरफेस को ऐसे ऊपर उठा देती है। वो हमारी आंखों से नोटिस किया जा सकता है और उसी को हम माउंटेन बिल्डिंग कहते हैं। टिल नाउ 9 टाइम्स दीज आर दी होरिजेंटल फोर्स, horizontal movements। till now 9 times orogeny had been occurred। from these 9 times यानी माउंटेन बिल्डिंग का काम हुआ। जब ये फोर्सेस हॉरिजॉन्टल सरफेस पे काम करें, अब बहुत मैसिव लेवल पे वो डिवास्टेशन या डिस्ट्रक्शन का काम करें या माउंटेन बिल्डिंग करें, ऐसी कंडीशंस में 3 बार अभी तक ये 9 टाइम्स ये जो है ये इस तरह की कंडीशंस आ चुकी है। साल भर ये स्लो मोशन में तो काम करती रहती हैं, लेकिन कभी कभार बहुत मास लेवल पे, बहुत मैसिव लेवल पे ये एक तरह अपहीवल यानी कि लैंड ब्लॉक का इसे ऊपर उठाने का काम करती हैं। उस तरह से टोटल 9 टाइम्स ये ओरोजेनी हो चुका है, यानी 9 बार जो है 9 बार 9 टाइम्स यानी कि 9 बार जो है माउंटेन बिल्डिंग्स हो चुका है। उनमें से 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि नंबर 1 पे हर्सिनियन माउंटेन बिल्डिंग, नंबर बी पे कैलेडोनियन माउंटेन बिल्डिंग, नंबर 3 पे अल्पाइन माउंटेन बिल्डिंग। जो हर्सिनियन माउंटेन बिल्डिंग है इसमें स्कैंडिनेवियन अपलैंड है। स्कैंडिनेवियन यानी कि जो ये स्वीडन नॉर्वे वाला ब्लॉक है, और उसी का एक्सटेंशन जो है आपका उसी का एक्सटेंशन हमारा जो है कनाडा का जो नदर्न पार्ट्स है, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स, वहाँ तक फैला हुआ है। दैट इज़ द हर्सिनियन माउंटेन बिल्डिंग।
अगर इसको इस तरह से हम डायग्राम में बनाने की कोशिश करें, इस तरह से, दीज आर दी हर्सिनियन कंट्रीज, दीज आर दी नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ये वाला ब्लॉक। और कनाडा की अगर हम बात करें यहां पे मान लें, तो ये वाला कनाडा का इधर वाला नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ द कनाडा, ये कुछ इस तरह से मान लीजिए, तो ये नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ द कनाडा, दिस इज द हर्सिनियन माउंटेन बिल्डिंग। कैलेडोनियन माउंटेन बिल्डिंग की अगर हम बात करें, तो ये जो यूराल माउंटेन रशिया का है, वो जो है कैलेडोनियन माउंटेन बिल्डिंग है। सेकंड टाइम पे अभी वेल हुआ या माउंटेन बिल्डिंग हुआ। दीज आर द फोल्ड माउंटेन्स, दीज थ्रीज आर द फोल्ड माउंटेन्स। नेक्स्ट वन इज द अल्पाइन माउंटेन बिल्डिंग, यानी कि न्यू यंग फोल्ड माउंटेन बिल्डिंग, न्यू यंग फोल्ड mountain building. The alpine mountain buildings, we can say the all Himalaya, Zagros and Turkey, in Turkey, in Iran and Hindu Kush, Himalaya and some mountains in China. So these are the alpine mountain. Alps in Europe and Atlas in northern Africa, these are the alpine mountain building. Rocky in the western coast of the America, Andes in the western coast of South America, alpine mountain building. So these are the young fold mountain building. These are the old, this is the oldest, this is the second one, this is the third one. अब हम आ जाते हैं इसके बारे में, ओरोजेनेटिक फोर्सेस। ये फोर्सेस जो है हमारा ओरोजेनेटिक फोर्सेस, अगर हम इसकी बात करें, ओरोजेनेटिक फोर्सेस की अगर हम बात करते हैं, तो हमारा ये फर्दर कैन बी डिवाइडेड इनटू कंप्रेशन फोर्सेस, कंप्रेशन फोर्सेस एंड टेंशनल फोर्सेस, या टेंशन फोर्सेस। द कंप्रेशन फोर्सेस, forces coming from two sides and converge at a place, that is also we can say the convergence force. Convergence force. The convergence force reduce the place, shorten the crustal blocks. The compression force, this is the compression force. The force is coming from two sides and coming toward each other and converge with each other at a place known as the compression forces. These compression forces shorten the crustal block, the upper layer of the crust. सरफेस के ऊपरी हिस्से को ये रिड्यूस कर देती हैं, घटा देती हैं, इसी को हम कहते हैं कंप्रेशन फोर्सेस। कंप्रेशन फोर्सेस की अगर हम बात करते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे हम उसका डायग्राम कुछ बनाने की कोशिश करते हैं। सपोज दैट हमने एक ब्लॉक बनाया, ये हमने डिफरेंट ब्लॉक बना दिया। ये क्या है हमारा, मान लीजिए रॉक है, रॉक का एक लेयर ये है और उसी के नीचे एक दूसरी लेयर है रॉक की, ऐसा भी हो सकता है हमारा। रॉक की एक दूसरी लेयर है, ये मान लीजिए ये इस तरह से कुछ है और एक लेयर उसके नीचे है इस तरह से कुछ। एक लेयर हमारी कुछ जो है इस तरह से है। हमने 3-4 लेयर बना दी। एक फोर्स इधर से काम कर रही है, यानी इधर से आई, एक फोर्स इधर से काम की, यानी एक फोर्स इसको इधर से पुश कर रही है, ये फोर्स इसको इधर से पुश की, एक फोर्स इधर से इसको पुश की। ये जब ये इसको फोर्स इसको पुश करेगी तो इसका क्या है कि कहीं ना कहीं से बल्ज हो जाएगा, वेव लाइक कंडीशन क्रिएट हो जाएगा।
अगर ये फोर्स काम करती रहेगी तो कुछ इस तरह से इसका ब्लॉक हो जाएगा, टर्न हो जाएगा, ये इस तरह से कुछ टर्न हो जाएगा, ये कुछ इस तरह से टर्न हो जाएगा। ये लेयर इसी तरह से है, ये वाली लेयर ये हो जाएगी इसकी। एक लेयर हमने सॉरी ये वाली ये बनाया है, एक लेयर हमने जो है इसका ये बनाया था। ये देखिए स्पेस इसका घट गया, दैट इज द शॉर्टन द क्रिस्टल ब्लॉक। ये रॉक को एक तरह से, क्यों, क्योंकि एक फोर्स इधर से काम की, एक फोर्स इधर से काम की, तो इसको कहते हैं कंप्रेशन फोर्सेस। व्हेन द फोर्सेस वर्क इन द अपोजिट डायरेक्शंस एंड क्रिएट ए फॉल्ट, ए फ्रैक्चर, ए क्रैक, नोन एज द टेंशन फोर्सेस। इसमें क्या होता है, फोल्ड बनता है, एंड सम टाइम फॉल्ट, generally it create the fold, sometimes it may be the fault, sometimes may create the fault या crack. When forces work in the opposite directions horizontally over the surface या over the crystal blocks, जब फोर्सेस सरफेस के ऊपर मूव करती है अपोजिट डायरेक्शंस में और एक क्रेक डेवलप कर देती है, तो उसी को हम कहते हैं टेंशन फोर्सेस। एक ही जगह से इमर्ज हो रही है फोर्स, एक अपोजिट डायरेक्शंस में दोनों फोर्सेस जा रही हैं, इसी को हम टेंशन फोर्स कहते हैं। दे इंक्रीज द एरिया ऑफ द क्रिस्टल ब्लॉक, इंक्रीज द एरिया ऑफ द क्रिस्टल ब्लॉक। ये ऊपर के हिस्से पर जहां पे ये फोर्सेस काम करती हैं, हॉरिजॉन्टली एक तो काम करती हैं, अपोजिट डायरेक्शंस में काम करती हैं, जहां पे ये काम करती हैं वहां के एरिया को ये बढ़ा देती हैं। उस क्रिस्टल ब्लॉक्स का एरिया साइज अगर बढ़ जाता है तो उसको टेंशन की फोर्स कहते हैं। इस टेंशन फोर्स के कारण क्या होता है, एक तो फॉल्ट क्रिएट होता है या रप्चर, क्रैक वगैरह या रिफ्ट वैली क्रिएट होती है। इसके बारे में अभी हम बातें करेंगे। अब हम बातें करते हैं कंप्रेशन फोर्सेस एंड टेंशनल फोर्सेस। कंप्रेशन फोर्सेस, व्हेन फोर्सेस कमिंग फ्रॉम टू साइड्स एंड कन्वर्जिंग टुवर्ड्स ईच अदर, when these forces facing to each other, these are working in the opposite directions, they move in the opposite directions। अब कंप्रेशन फोर्सेस से हमने क्या बोला, फोल्ड बनता है, इससे हमने क्या बताया, फॉल्ट बनता है। अब हम बातें करते हैं फोल्ड की, उसके बाद फॉल्ट की बातें करेंगे। तो एक तरफ से सिस्टमैटिक हम फोल्ड की बातें करते हैं। व्हेन फोर्सेस coming horizontally from different directions and converging at a place, they reduce the size या area of the crystal blocks and they buckled the surface and create a wave-like features, the upward and downward of the slope known as the fold। जब फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन से आई और एक जगह कहीं पे कन्वर्ज हुई, मिली, उसके बाद उसमें उसको क्रिपल्ड या बक्कल्ड, इस तरह से इसको क्रिपल्ड या बक्कल्ड किया और उसको तोड़ मरोड़ करके उसके लिम्स को उठा दिया ऊपर। कुछ हिस्सा उसका ऊपर उठ गया और साइड में एक हिस्सा उसका नीचे चला गया, तो एक हिस्सा में क्रेस्ट क्रिएट हुआ, दूसरे में ट्रफ क्रिएट हो गया, उसी को फोल्ड कहते हैं। क्या होता है, एक क्रिस्टल ब्लॉक्स हमने मान के चलिए यहां पे बनाया ऐसे, एक हमने एक क्रिस्टल ब्लॉक्स यहां पे बना दिया कुछ, ये वाला अगर क्रिस्टल ब्लॉक्स मान लीजिए हमने इसको मिटा देते हैं, एक ये हो गया हमारा,
ये मान के चलिए हमने ये लिख दिया कुछ इस तरह से। यहाँ पे हमने एक ब्लॉक और बनाया है ऐसे, इसी का एक लेयर और बनाया है ऐसे। उसके बाद नेक्स्ट वाला हमने क्या बनाया, एक ये बनाया हमने, ये बनाया, ये वाला हमने बना लिया। नेक्स्ट हमने एक और कोई क्रिएट कर दिया इस तरह से, मान लेते हैं इसी में एक और इस तरह से है, एक ये वाला है हमारा कुछ इस तरह से। सपोज दैट एक फोर्स इधर से आई, एक फोर्स इसको इधर से काम की, इसको जब पुश किया तो ये कुछ इस तरह से ऊपर की तरफ उठ गया। ये वाला जो हिस्सा अगर इधर से फोर्स काम की, इधर से फोर्स काम की, तो ये हिस्सा कुछ ऊपर उठ गया। ये वाला हिस्सा जो है, व्हेन फोर्सेस कमिंग फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शंस एंड कन्वर्ज एट ए पॉइंट्स, दे crippled and buckled the crystal blocks and creates upwards and downward sides in the same blocks. One place which uplifted emerged is known as the anticline. Where the place is submerged या downwards या depressed या subsided, known as the syncline. सिंक लाइन। तो इस तरह से जब कोई फोर्स, ये अगर ब्लॉक में इसके फर्दर फोर्स काम करेगी तो कुछ इस तरह से ये बन जाएगा। ये एक फोर्स इधर से आई, एक फोर्स इसको इधर से काम की, दिस इज द एंटीक्लाइन। दिस क्रेस्ट या अपलिफ्टेड पार्ट इज नोन एज द एंटीक्लाइन। The subsiding parts is known as the syncline. The uplifted part is known as this is the anticline. The subsiding and subsidence parts known as the syncline. Anticline and syncline. These are the waves like the features, wave like conditions known as the fold. These are the fold, यानी कि बलन या वलन। अब सवाल यह है कि फोल्ड कितने प्रकार के होते हैं। These forces not work simultaneously, regularly. Sometimes the forces from one side is acute, sharpened and very abrupt, while the force from other side is very smooth, regular and irregular. It varies. It varies. Due to these variations of the force striking from different sides, from opposite sides, they create different type of the fold, different type of the वलन। जो ये फोर्सेस काम करती हैं, कभी एक साइड की फोर्स बहुत तेज होती है, दूसरे साइड की मध्यम होती है। कभी एक साइड की रेगुलर होती है, दूसरे साइड की इरेगुलर होती है। कभी एक साइड की फोर्स जो है एकाएक बहुत तेज काम करेगी, फिर रुक जाएगी, फिर एकाएक बहुत तेज काम करेगी, तो उसकी वजह से डिफरेंट टाइप के फोल्ड बनते हैं। उन फोल्ड्स के बारे में बातें करते हैं। तो क्या है टाइप्स ऑफ फोल्ड? टाइप्स ऑफ फोल्ड। नंबर 1 पे हमारा क्या है? साइमेट्रिकल फोल्ड, यानी कि सममित वलन, साइमेट्रिकल फोल्ड। मेट्रिकल फोल्ड यानी सममित वलन। असाइमेट्रिकल फोल्ड यानी कि
असममित वलन। नेक्स्ट हमारा जो है मोनोक्लिनल फोल्ड, मोनोक्लिनल फोल्ड। क्लिनल फोल्ड। नेक्स्ट हमारा जो है मोनोक्लिनल फोल्ड का मतलब होता है एक दिग्नत वलन, एक दिग्नत वलन। उसके बाद ओवर थ्रस्ट फोल्ड या आइसोक्लिनल फोल्ड यानी कि समनत वलन, अगेन समनत वलन, आइसोक्लिनल फोल्ड, आइसो क्लिनल फोल्ड यानी कि समनत वलन। नेक्स्ट हमारा जो है ओवर थ्रस्ट फोल्ड, ओवर थ्रस्ट फोल्ड। नेक्स्ट हमारा जो है ओवर थ्रस्ट फोल्ड का मतलब होता है अधिक्षिप्त वलन, अधिक्षिप्त वलन यानी ओवर थ्रस्ट फोल्ड। नेक्स्ट हमारा जो है रिकम्बेंट फोल्ड, रिकम्बेंट फोल्ड। रिकम्बेंट फोल्ड का मतलब होता है हमारा परिवलित, परिवलित वलन, रिकम्बेंट फोल्ड। नेक्स्ट हमारा नैपे, नेक्स्ट हमारा जो है नैपे। अब इसके बारे में, सबके बारे में हम बातें करते हैं। हमने बातें की कि जैसे ये दो फोर्सेस काम करती हैं तो इस तरह से कोई ब्लॉक क्रिएट हो जाती है। एक फोर्स इधर से आई थी, एक फोर्स इधर से आई थी। उसके बाद यही फोर्स इस तरह से कुछ काम क्रिएट करेगी तो एक फोर्स जो है आपका ये, दिस इज द सिंक्लाइन, दिस इज द एंटीक्लाइन। द अपवर्ड साइड्स, द अपवर्ड अपलिफ्टमेंट्स, uplifted part is on the anticline, downwards movements या subsiding parts known as the syncline. ये symmetrical fold. These are the limbs. This is the limbs. This is the limbs. यानी कि अंग या भुजा, इसको क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। यानी कि आपका लिम्स यानी कि भुजाएं। तो नंबर 1 पे सिमेट्रिकल फोल्ड है। सिमेट्रिकल फोल्ड का मतलब क्या होता है? both the forces work equally, both the forces are equal in force, both create the limbs of the equal angle। तो यहाँ पे लिम्ब जो है या भुजाएं दोनों इक्वल हैं। क्यों? क्योंकि दोनों साइड से इक्वल फोर्स काम कर रही थी, तो उसको सिमेट्रिकल फोल्ड कहते हैं। तो बोथ द लिम्स आर इनक्लाइंड एट द सेम एंगल। यहाँ पे हम लिख सकते हैं बोथ द लिम्स inclined at सिमिलर एंगल। दोनों लिम्ब जो है आपका इक्वल ही एंगल पे हैं, या बोथ द फोर्सेस वर्क इन द इक्वल वेलोसिटी। जब दोनों फोर्स इक्वल ही स्पीड की होंगी, इक्वल ही वेलोसिटी की होंगी, तो सिमेट्रिकल फोल्ड बनाएंगी। दोनों लिम्ब या दोनों भुजाएं इक्वल जो है या सिमिलर एंगल पे झुकाव होगा, दोनों भुजाओं का सिमिलर एंगल पे झुकाव होगा, तो उसी को हम कहते हैं सिमेट्रिकल फोल्ड। अब हम बातें करते हैं असिमेट्रिकल फोल्ड की। द फोर्सेस आर नॉट इक्वल इन द वेलोसिटी। फ्रॉम वन साइड force is dominating and other side is not too much excessive force working। दोनों साइड से एक जैसी फोर्सेस काम नहीं करती। एक साइड से फोर्स बहुत ही तेज होती है, दूसरे साइड से फोर्स थोड़ा स्लो या मध्यम उसकी पेसिंग होती है। हियर वन लिम्स विल बी, मान के चलिए एक इस तरह से फोर्स काम करती है, इस तरह से। यहाँ पे ये मान लीजिए कि सरफेस था। अब ये वाला फोर्स जो है कम काम की इधर से, और इधर से फोर्स ज़्यादा एक्यूट है, ज़्यादा मतलब कि वेलोसिटी वाली फोर्स है, तो ये लिटिल बिट जेंटल है। तो वन लिम्ब इज स्टीपर, दिस इज द स्टीपर, another one is the gentle। where force is working more, this will create the steep slope, steep limbs। where force is, so both the limbs are not inclined
at the same angle, one is steeper, another one is gentle. जहां से फोर्स कम आएगी वो जो है जेंटल होगा, जहां से फोर्स ज्यादा आएगी वो जो है ज्यादा स्टीपर स्लोप होगा. दैट इज द एसिमेट्रिकल फोल्ड. तो एसिमेट्रिकल वन लिम्ब इज स्टीपर देन द अदर्स. ठीक. नेक्स्ट हमारा जो है मोनोक्लिनल फोल्ड. मोनोक्लिनल फोल्ड का मतलब होता है एक दिग्नत वलन. वन लिम्ब इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस वेयर अदर इज इंक्लाइंड. वन लिम्ब इज परपेंडिकुलर, वन लिम्ब इज परपेंडिकुलर यानी एक भुजा जो है वन लिम्ब इज perpendicular where as other is inclined, known as the monoclinal. मोनो माने होता है सिंगल, क्लिनल में इंक्लाइंड. सिंगल लिम्ब्स इज इंक्लाइंड, इस तरह समझिए. सिंगल लिम्ब्स इज इंक्लाइंड. The inclinations of the one limbs while other limbs is remain intact. इसकी अगर हम डायग्राम बनाते हैं तो कुछ इस तरह से बनेगा. मान लेते हैं कि एक फोर्स, ये हमारा जो है टेंजेंट है सरफेस का, ये टेंजेंट है सरफेस का. एक जो है इस तरह से कुछ है फोर्स और एक जो है आपका परपेंडिकुलर है इसके. ये जो है हमारा, ये जो है हिस्सा, ये इस तरह से कुछ बनेगा. तो क्या है मोनोक्लिनल. वन लिम्ब इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट टू द सरफेस. ये परपेंडिकुलर है, जैसे ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है. इसके परपेंडिकुलर कौन सी लाइन हो जाएगी, ये परपेंडिकुलर हो जाएगी. इस तरह दैट इज द परपेंडिकुलर. तो इसके यानी सरफेस के परपेंडिकुलर है एक लिम्स जो है, और अदर जो है इंक्लाइंड है. तो वन लिम्स इज इंक्लाइंड, इसका मतलब हुआ है मोनो मतलब सिंगल लिम्ब इज इंक्लाइंड. कहने का तात्पर्य है कि फ्रॉम वन साइड फोर्स इज एक्यूट while from other side force is not too much massive या heavy. एक साइड से फोर्स हल्का है, इधर से फोर्स हल्का है, इसलिए ये जेंटल स्लोप है. ये स्टीप स्लोप है, स्ट्रेट स्लोप बनाया, फुल्ली 90 डिग्री पे एंगल बनाया. दैट इज द परपेंडिकुलर, इसने एक लिम्स को क्रिएट कर दिया. दैट इज द मोनोक्लिनल फोल्ड. नेक्स्ट आता हमारा आइसोक्लिनल फोल्ड. बोथ द लिम्स आर inclined in such a manner कि दोनों लिम्ब इस तरह से मतलब कि बन जाते हैं कि इक्वल जो है अपलिफ्टमेंट हो जाता है दोनों लिम्स का. दैट इज द आइसोक्लिनल यानी कि समनत वलन. बोथ द लिम्स आर इंक्लाइंड एट द सेम एंगल एंड इन द सेम डायरेक्शन. बोथ द लिम्स इंक्लाइंड एट द सेम एंगल एंड सेम डायरेक्शन. इसका हो जाएगा हमारा आइसोक्लिनल. बोथ द लिम्स inclined at same angle and same direction. Both the limbs straight perpendicular to the plane, to the horizontal plane. इस वाली कंडीशंस का अगर हम डायग्राम यहां बना देते हैं तो इसको इस तरह से समझा जाएगा. मान के चलिए ये हमारा सरफेस है, इस सरफेस पे एक जो है फोर्स कुछ इस तरह से काम करती है.
both the limbs are at equal angle and equal directions, but they are steeper as well as the straight perpendicular to the plane. इसके जो है ये परपेंडिकुलर है, इसके दोनों परपेंडिकुलर है। क्यों? क्योंकि एक्यूट बहुत ही मैसिव फोर्स, रेगुलर फोर्स इस पे काम की और यकायक ऐसी फोर्स काम की कि दोनों लिम्स को यकायक ऊपर उठा दिया, तो इसको कहा जाता है आइसोक्लिनल फोल्ड। नेक्स्ट हमारा जो है आपका ओवरथ्रस्ट फोल्ड है, यानी अधिक्षिप्त है। वन लिम्ब इज ओवरटर्न्ड एंड लाइज बीनीथ द अदर। ये हमारा जो है ओवरथ्रस्ट है, उसके बारे में बातें करें। ओवरथ्रस्ट का मतलब होता है कि वन लिम्ब इज ओवरथ्रस्ट, one limb lies over the other। एक लिम्ब दूसरे के ऊपर जो है पैरेलल हो जाए, उसी को हम कहते हैं ओवरथ्रस्ट। एक लिम्ब जो है, वन लिम्ब लाइज बीनीथ द अदर लिम्ब, नोन एज द ओवरथ्रस्ट। इसकी अगर हम डायग्राम इसका बनाते तो कुछ इस तरह से डायग्राम बनता है इसका, कि मान के चलिए एक फोर्स ये कुछ इस तरह से काम करती है। ये इस तरह से एक लिम्ब के ऊपर दूसरा, यानी लिम्ब जो है दूसरा जो है भुजा, एक भुजा के ऊपर कुछ जो है इस तरह से है, ये इस तरह से। इसकी अगर ब्लॉकिंग करते हम अलग अलग इसका जो है बेड्स के बारे में अगर हम इसको फाउंड करते तो इसकी डिज़ाइन कैसे होती? इसकी डिज़ाइन कुछ ऐसे हो जाती। मान लीजिए ये वाली लाइन थी इसकी, इस तरह से वन लिम्स, एक भुजा दूसरे भुजा के ऊपर लाइज करती है, पड़ी हुई है, दैट इज द ओवरथ्रस्ट। वन लिम्स ओवरटर्न्ड ओवर द अदर लिम्स, नोन एज द ओवरथ्रस्ट फॉल्ट। एक भुजा दूसरे भुजा के ऊपर आकर के पड़ जाए, उसी को हम ओवरथ्रस्ट फॉल्ट कहते हैं। अभी एक डायग्राम बनाएंगे, इसमें सारा आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा जो है रिकम्बेंट है, रिकम्बेंट फोल्ड। बोथ लिम्स आर पैरेलल टू द सरफेस या टू द ग्राउंड, रिकम्बेंट फोल्ड। रिकम्बेंट फोल्ड की अगर हम बातें करें, नंबर नेक्स्ट पे हमारा जो है ओवरथ्रस्ट के बाद रिकम्बेंट। रिकम्बेंट फोल्ड का मतलब कि बोथ द लिम्स लाइज ओवर द सरफेस। यहां पे फोर्स इधर से काम की थी इस वाले में, लेकिन इतना ज्यादा फोर्स नहीं हुई थी कि ये दोनों लिम्स इसके ऊपर आकर के पड़ जाएं। जब फोर्स इतना ज्यादा काम कर जाए कि एक लिम्ब दूसरे ऊपर आकर के पड़ जाए, तो उस वाली कंडीशंस को क्या कहा जाएगा? यहां पे अगर हम लिख देते हैं इसको, रिकम्बेंट फोल्ड का मतलब both the limbs lies both the limb lies over the both the limbs lie over the सरफेस। जब फोर्स कुछ इस तरह से काम करे कि दोनों भुजाएं सरफेस के ऊपर आकर के पड़ जाएं, तो उसी को हम कहेंगे क्या? रिकम्बेंट फोल्ड। मान लीजिए ये हमारा प्लेन था, अब ये फोर्स काम की तो दोनों भुजाएं जो हैं इस तरह से आकर के इस पे पड़ गई, इस तरह से कुछ हुआ, ये भुजा जो है इस पे आकर के फुल्ली इस तरह से पड़ जाए। अगर मान लीजिए ये हमने जो है एक डायग्राम बनाया इस तरह से कुछ, ये मान लीजिए कि एक हमने ये सरफेस बना दिया, इसी के ऊपर जो है दोनों फोल्ड कैसे बनेंगे, ये मान के चलिए कि एक जो है इस तरह से,
देखिए ये जो क्रिस्टल ब्लॉक्स हैं इसमें क्या है, फोर्स इस तरह से काम की कि क्या है कि इसको हम क्या कहते हैं, रिकम्बेंट फोल्ड। बोथ द लिम्स लाई ओवर द सरफेस। ये सरफेस था हमारा, ये सरफेस है, इस सरफेस पे दोनों लिम्ब इस तरह से ज्यादा टर्न हो गई कि आकर के इसी के ऊपर पड़ गई। इसी को हम कहते हैं रिकम्बेंट फोल्ड। अगला इसी का कंडीशंस है हमारा नेपे। अगला हमारा फीचर्स हो जाएगा नेपे, यानी कि नंबर नेक्स्ट हमारा जो है नेपे या नेप नेपे। रॉक ब्रेक्स एंड स्लिप्ड फॉरवर्ड या डिस्प्लेस्ड फॉरवर्ड। नेपे में क्या है, बोथ फोर्स वर्क इन सच ए मैनर रॉक्स broken into different blocks and displaced away. That is the nape. Rocks broken, breaks and displaced away. इसको लिख सकते हैं, शॉर्ट में लिख देते हैं, rocks break and displaced away. जब रॉक टूट जाएगी और अलग हो जाएगी उस वाली कंडीशंस में फॉल्ट क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, क्रिएट फॉल्ट और क्रैक या रप्चर। ये वाली कंडीशंस का इसका एक्सटेंशन वर्जन ये था। अब इसमें फर्दर अगर ये इस तरह से क्रिपल डाउन हो जाए, ये वाले और ज़्यादा काम करे, तो यही इसी में एक क्रैक इस तरह से यहीं पे कहीं पे डेवलप होगा, ये क्रैक होगा और ज़्यादा इसमें एक्यूट वर्क काम करे ये फोर्सेस, तो उसमें एक कंडीशन ये क्रिएट हो जाएगी। इसको हम कुछ इस तरह से मिटा करके यहाँ पे बनाते हैं। मान लेते हैं ये हमारा जो है बेड रॉक है, यह सरफेस है, और इसी पे एक वाला ये फोर्स ये वाला जो काम कर रही है, मतलब कि ये वाली जो हमारी है इस तरह से कुछ है, ये वाली लाइन हमने बनाई, तो उसी का एक टुकड़ा टूट करके जब अलग होगा तो ये वाला हिस्सा कुछ इस तरह से होगा, यहाँ पे चला जाएगा। नेक्स्ट हमने बनाया था ये ग्रीन कलर का, तो ये वाला हिस्सा इसका कुछ टूट करके इस तरह से अलग होगा। नेक्स्ट हमने बनाया था ये वाला, मान लीजिए, तो इसका कुछ टूट करके कुछ टुकड़ा अलग होगा इस तरह से। फिर हमारा कोई मान के चलते हैं इस तरह से कोई कलर है, तो इसी का टुकड़ा टूट करके कुछ इस तरह अलग होगा। और यही वाला अगर मान लेते हैं एक और इसमें है, तो इसका कुछ टुकड़ा टूट करके अलग होगा। ये पूरी की पूरी ब्लॉक जो है एक तरह से अलग हो करके टुकड़ों में टूट गई। एक यहाँ पे क्रैक या रप्चर या फ्रैक्चर डेवलप हो गया, इस वाले फेनोमेना को कहते हैं नेपे। यहाँ पे देखिए एक क्रैक डेवलप हो गया, ये एक फ्रैक्चर डेवलप हो गया, इस वाले फेनोमेना को हम नेपे कहते हैं। तो टाइप्स ऑफ फोल्ड के जो टाइप्स हैं हमने बनाए डायग्राम के थ्रू। अब एक सिंगल डायग्राम के थ्रू अगर हम इसको समझा ले जाते हैं तो समझ लेते हैं कि समझिए कि एक तरह से नंबर 1 पे सिमेट्रिकल फोल्ड, नंबर 2 पे एसिमेट्रिकल, नंबर 3 पे हमारा जो है ओवरफोल्ड है, नंबर 3 नेक्स्ट पे हमारा रिकम्बेंट फोल्ड है, एंड नेक्स्ट हमारा जो है नेपे है। नेपे में ये हमारा फॉल्ट लाइन क्रिएट हो जाता है। एक डायग्राम अगर सिंगल बनाया जाए इसका पूरे का तो कुछ इस तरह से बन जाएगा। मान लेते हैं कि ये क्लस्टर ब्लॉक हमारा ये है, कुछ ये सरफेस है, इसी पे कोई फोल्ड अगर घटना घटती है, फोल्ड बनता है। दिस इज द सिमेट्रिकल फोल्ड। दिस इज द असिमेट्रिकल फोल्ड। ये स्पेस कम है लेकिन हम दोबारा इसको फिर से बनाते हैं। मान लेते हैं ये हमारा जो है
क्रिस्टल ब्लॉक, ये सरफेस है, इसी पे हमने एक जो है, सपोज दैट दिस इज द symmetrical fold, both the folds, both the limbs are equal in the angle, both inclined at equal angle, that is the symmetrical fold. Next one is the हमारा asymmetrical. Asymmetrical, one limb is inclined more compared to other, one is the steeper, other is the gentle, that is the known as the asymmetrical fold. Next one is the monoclinal, one is inclined while other is very gentle, known as the monocline. Next one is the overthrust. overthrust का मतलब एक लिम्ब दूसरे लिम्ब के ऊपर आकर के पड़ जाए, उसको हम overthrust कहते हैं. नेक्स्ट इसी का हमारा एक्सटेंशन हो जाएगा, अगर इसी ब्लॉक को हम नीचे बना देते कुछ यहां पे, तो ओवरथ्रस्ट के बाद बोथ द लिम्स लाइज ओवर द सरफेस, ये जो सरफेस है इसी के ऊपर दोनों आ जाएंगे, तो उस वाली कंडीशंस को हम कहते हैं रिकम्बेंट फोल्ड. रिकम्बेंट फोल्ड, ये जब अगला इसी का कंडीशंस हमारा होता कि एक ब्लॉक इस पे आकर के पड़ जाए और दूसरी ब्लॉक टूट करके अलग हो जाए, और ये जो बीच में क्रैक या फ्रैक्चर डेवलप हो गया, इसी को हम कहते हैं फॉल्ट या क्रैक. और एक ब्लॉक थोड़ा ये यहाँ भी हो सकता है, थोड़ा दूर हट करके यहाँ कहीं भी हो सकता है, इसी को नैपे कहा जाता है. और फोल्ड के बाद अगर हमारा अगला है फोल्ड में एंटीक्लाइनोरियम एंड सिंक्लाइनोरियम. नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एंटीक्लाइनोरियम. Anticlinorium means a series of small anticline and synclines in the very extensive anticline, known as the anticlinorium. A series of small anticline and syncline in the a series of small anticline and syncline, a minor anticline and syncline in the very large extensive anticline, known as the एंटीक्लाइनोरियम. इसको अगर समझा जाए तो वो इस तरह से कुछ बनाया जा सकता है. इस डायग्राम को मिटा देते हैं यहाँ पे हम, ये कुछ बनेगा इस तरह से हमारा. Series of anticlines and syncline in a large extensive anticline. These are large extensive anticline. इसमें बहुत सारे एंटीक्लाइन एंड सिंक्लाइन बन जाएं, उसी को हम एंटीक्लाइनोरियम कहते हैं. नेक्स्ट हमारा जो है सिंक्लाइनोरियम है. A series of anticline and syncline in a large very extensive syncline. ऐसे बहुत सारे एंटीक्लाइन एंड सिंक्लाइन हो किसी एक वाले इसमें, तो इसको सिंक्लाइनोरियम कहते हैं. इसको हम सिंक्लाइनोरियम कहते हैं. ये जो एंटीक्लाइनोरियम को हम फाइन फोल्ड भी कहते हैं, फाइन फोल्ड भी कहते हैं. फाइनली ये एंटीक्लाइन ही है, फाइनली ये सिंक्लाइन ही है, लेकिन बहुत सारे एंटीक्लाइन सिंक्लाइन छोटे छोटे हैं. नेक्स्ट हमारा जो है फॉल्टिंग है, यानी कि भ्रंशन, फॉल्टिंग. अगला टॉपिक हमारा जो है फॉल्टिंग का है, यानी कि भ्रंशन. फॉल्टिंग, when compression forces work in the opposite directions, it increase the size, it increase the area of the crystal block, it create a crack
it create Rift Valley, it create Graben Valley, it formed Block Mountain, it formed Host Mountain, known as the faulting. अब faulting के अंतर्गत हमको चीजें पढ़ते हैं. When rocks are displaced after developments of the crack, fault is formed. When rocks are displaced after development of the crack, known as fault is formed. तो फॉल्ट क्या होता है? जब क्रेक डेवलप हो जाए किसी भी रॉक्स में और रॉक अलग हो जाए दो हिस्सों में, अलग अलग डायरेक्शंस में, उन पे अपोजिट फोर्सेस काम करें, या कंप्रेशन फोर्सेस से भी फॉल्ट बनता है लेकिन बहुत कम बनता है. कंप्रेशन से ज़्यादातर फोल्ड ही बनता है. एक जगह कहीं पे थोड़ा सा नैपे में आकर के हमने देखा था कि फॉल्ट बना. मेजॉरिटी टाइम में, मैक्सिमम टाइम इसमें फोल्ड ही बनता है. जैसे हिमालय क्या है, ये फोल्ड माउंटेन है. जो ये वैलीज हैं, काठमांडू वैली, कश्मीर वैली, तो दीज आर दी सिंक लाइन. और जो माउंटेन्स के से पीक हैं, क्रेस्ट वाला कंडीशन से, वो माउंटेन्स हैं. तो उसी को हम कहेंगे ये फोल्ड माउंटेन है. इसीलिए हमने कहा इस हिमालय को फोल्ड माउंटेन. अब हम बातें करते हैं फॉल्ट की. फॉल्ट्स की बातें करते हैं, यानी कि भ्रंशन. भ्रंशक क्या है? भ्रंशन. फॉल्ट्स की अगर बातें करें, यानी कि भ्रंशन. Rocks are displaced and a crack is developed, known as the fault. There are different types of the faults. क्या है? Types of fault. नंबर 1 पे नॉर्मल फॉल्ट. नॉर्मल फॉल्ट होता है हमारा, मोस्टली इसमें टेंशन फोर्स काम करती है फॉल्ट के बनाने में. नेक्स्ट पे हमारा जो है रिवर्स फॉल्ट है. नंबर 2 पे हमारा रिवर्स फॉल्ट है. नेक्स्ट पे हमारा जो है रिवर्स के बाद जो है ट्रांसकरेंट फॉल्ट है. ट्रांसकरेंट फॉल्ट है. ये 3 फॉल्ट्स के वैरायटीज हैं या टाइप्स हैं. अब नंबर 1 पे नॉर्मल फॉल्ट है. नॉर्मल फॉल्ट का मतलब सामान्य भ्रंश. नॉर्मल फॉल्ट, व्हेन crustal block displaced away, a crack is developed due to the tension forces, and expansion of the crust, known as the normal fault. Displacement of the crustal block या rocks, fault is created due to the tension forces, area of the block is increased, या expansion of the rock. Expansion of the rock, known as the normal fault. नॉर्मल फॉल्ट के बारे में पहले हम बातें करें. नॉर्मल फॉल्ट्स को अगर हम बनाने की कोशिश करें, यानी कि सामान्य भ्रंश. सामान्य भ्रंश की अगर बातें करें तो उसमें होता क्या है कि टेंशन फोर्स काम करती है, ब्लॉक को 2 हिस्सों में डिवाइड कर देती है. एक अप थ्रोन साइड होता है, दूसरा डाउन थ्रोन साइड होता है. इसका अगर डायग्राम बनाया जाए तो इसको कुछ इस तरह से होगा. मान लेते हैं थोड़ा टफ है डायग्राम इसका. ये मान लीजिए हमने एक डायग्राम का ये बनाया इस तरह से कुछ. नेक्स्ट हमने जो है
यहाँ पे बना लिया कुछ इस तरह से थोड़ा सा, ये हो गया। अगला हमारा जो है थोड़ा सा टफ है हल्का सा, इस तरह से कुछ बनेगा। इसको दूसरे एंगल से ये समझा जा सकता है, अगर इसको हम ऐसे समझें, मान लेते हैं कि एक क्रिस्टल ब्लॉक है, एक क्रिस्टल ब्लॉक है, एक टेंशन फोर्स है, इसको काम करती है। जब क्रिस्टल ब्लॉक पे टेंशन फोर्स काम करेगी, अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रॉक फॉल्ट इज क्रिएटेड, अपोजिट डायरेक्शंस में काम करेगी। तो यहाँ पे एक हिस्सा थोड़ा सा इसी तरह से ब्लॉक था, एक हिस्सा कुछ इसका नीचे आ जाएगा, ये इस तरह से। इसी को हमने क्या कहा, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्सेस काम कर रही हैं, अपोजिट डायरेक्शंस में। यहाँ पे जो ये क्रैक क्रिएट हुआ, इसी को हमने फॉल्ट बोला। एक्सपेंशन ऑफ द रॉक, रॉक ये फैलता है, एरिया इसमें फैल जाता है, उसी को हम नॉर्मल फॉल्ट कहते हैं। यही फर्दर फोर्स जब काम करेगी, एक ब्लॉक कुछ इस तरह से ऊपर ही रह जाएगा, और ये जो है दूसरा ब्लॉक क्या जो है ये जो है इस तरह से कुछ नीचे चला जाएगा। फर्दर ये वाला पॉइंट इसमें आकर के भी जुड़ सकता है, इतना ज़्यादा ये डेप्थ में क्रिएट हो सकता है, चला जा सकता है। ये वाला जो है कंडीशंस यहाँ पे हमने देखा कि ये जो हिस्सा इसका, ये पूरा का पूरा एक तरह से क्रैक ही है। यहाँ पे ये वाला हिस्सा जो है स्कार्प कहलाता है, फॉल्ट स्कार्प कहलाता है, जो रेड कलर हमने किया, और ये पूरा का पूरा एक क्रैक क्रिएट किया। दिस इज़ द नॉर्मल फॉल्ट। क्यों क्रिएट हुआ, एक फोर्स इधर काम की, एक फोर्स इधर काम की, दोनों ने अपने साइड में इस ब्लॉक को खींचा, इस रॉक को, चट्टान को खींचा, इसको नॉर्मल फॉल्ट कहते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है रिवर्स फॉल्ट है। रिवर्स फॉल्ट को कहते हैं व्युत्क्रम या उत्क्रम भ्रंश। व्युत्क्रम या उत्क्रम भ्रंश। इट इज क्रिएटेड बाय द reverse fault is created by the compression forces. It's shortening the area and create a crack. इसका अगर हम डायग्राम कुछ बनाएं तो कुछ इस तरह से बनेगा हमारा रिवर्स फॉल्ट का। मान लेते हैं इस तरह से एक हमने चट्टान का टुकड़ा लिया, और यहाँ पे हमने इस तरह से कुछ, ये हो गया हमारा इस वाली कंडीशन में हमने क्या देखा कि यहाँ पे जो है इस तरह से मान लेते हैं ये वाली रॉक थोड़ी सी नीचे आ गई, ये वाला हिस्सा इसका ऊपरी सरफेस का, और ये वाला थोड़ा सा ऊपर चला गया। अभी मैं बताऊंगा क्यों चला गया। और मान लेते हैं कि यहाँ पे एक ऐसे ये कुछ इस तरह से, सॉरी, ये मान लेते हैं कि एक क्रैक डेवलप हुआ। ये क्रैक डेवलप हुआ। क्यों क्रैक डेवलप हुआ? ड्यू टू द कंप्रेशन फोर्सेस। एक फोर्स जो है इधर से आई, एक फोर्स इधर से काम की, या एक फोर्स इसको इधर से पुश किया, एक फोर्स इसको इधर से पुश किया, और ये वाला जो इसी का आपस में एक ही ब्लॉक था, ये पूरा, ये ऊपरी वाला सरफेस है, ये साइड वाला सरफेस है, ये एक साइड वाला सरफेस है। इसमें क्या देखा कि एक क्रैक डेवलप हो गया, ये क्रैक डेवलप हो गया। क्या होता है कि व्हेन कंप्रेशन फोर्सेस वर्क वन ब्लॉक overthrust over the another, the same block overthrust over another part, अपने ही पार्ट, within the parts, within the
surface. It reduce, it shorten the surface. It create a fault, it create a cracks known as the reverse fault. एक ही ब्लॉक है, उसमें कंप्रेशन फोर्सेस काम किया तो उसके कारण यहाँ पे क्रैक डेवलप हो गया, इसको रिवर्स फॉल्ट कहते हैं. अपना ही एरिया थोड़ा सा एक हिस्सा ऊपर उठ गया, दूसरा हिस्सा उसके नीचे चला गया हल्का सा, और एक ऐसे क्रैक डेवलप हो गया, इस वाले को हम रिवर्स फॉल्ट कहते हैं. अगला हमारा जो है ट्रांसकरेंट फॉल्ट है. फोर्सेज आर पैरेलल टू ईच अदर एंड क्रिस्टल ब्लॉक्स आर डिस्प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर. ट्रांसकरेंट फॉल्ट का मतलब क्या होता है कि फोर्सेज आर पैरेलल टू ईच अदर एंड displace block parallel to each other known as the transcurrent fault, जॉन डी फूका फॉल्ट एग्जाम्पल के तौर पे. यहाँ पे ट्रांसकरेंट फॉल्ट में अगला हमारा है ये ट्रांसकरेंट फॉल्ट. दो फोर्सेस इस तरह से काम करती हैं कि दोनों फोर्सेस आपस में टकराती नहीं हैं, लेकिन पैरेलल एक दूसरे के साइड से गुजर जाती हैं. इस वाली कंडीशंस को हम कहते हैं ट्रांसकरेंट फॉल्ट. फोर्सेस आर पैरेलल टू ईच अदर एंड डिस्प्लेस ब्लॉक पैरेलल टू ईच अदर नोन एज द ट्रांसकरेंट फॉल्ट. जब दो फोर्सेस इस तरह से काम करती हैं कि दोनों फोर्सेस आपस में टकराती नहीं हैं, बल्कि एक फोर्स दूसरे फोर्स के साइड से गुजर जाती है, उसी को हम ट्रांसकरेंट फॉल्ट कहते हैं. मान लेते हैं एक ब्लॉक हमने कुछ इस तरह से बनाया, दूसरा टुकड़ा हमने कुछ इस तरह से बनाया, इस तरह से कुछ हो जाएगा. और ये वाला जो है अगर हम इसको मिटा करके फिर से बनाते हैं तो यहाँ क्लियर हो जाएगा पिक्चर इसका. मान लेते हैं कि एक हमने टुकड़ा जो है एक ये ब्लॉक है और दूसरा हमारा जो है मान लें ये वाली फोर्स. मान के चलिए कि एक फोर्स इधर से आई, इससे इधर काम कर रही है, एक फोर्स इधर चली गई, एक फोर्स इधर काम की चली गई. क्या है? ट्रांसकरेंट फॉल्ट क्रिएट करती है. फोर्सेस आर पैरेलल टू ईच अदर. एक फोर्स इधर से गई, एक फोर्स दूसरी फोर्स इधर से काम की. एक टाइम ये था कि ये कोना इसका जो हिस्सा हुआ करता था, ये वाला हिस्सा इधर हुआ करता था. ये फोर्स इधर से आई तो इसको थोड़ा इधर ब्लॉक को लेकर चली गई टू ईच अदर एंड डिस्प्लेस ब्लॉक पैरेलल टू ईच अदर. एक ब्लॉक को दूसरे पैरेलल ही बनाया, लेकिन इसमें क्रैक डेवलप कर दिया. ये जो क्रैक डेवलप हुआ इस वाली कंडीशंस में, ये क्या है? हमारा जो है यही फॉल्ट है. ये क्या है हमारा? ये फॉल्ट है. यही कहलाता है हमारा ट्रांसकरेंट फॉल्ट. अगर इसको अगर दूसरी तरह से समझा जाए तो उसको कुछ इस तरह से समझा जा सकता है. मान लेते हैं हम ये सपोज दैट हमारा ये यूएस का अगर हम मैप बना दें यहाँ पे कुछ इस तरह से, ये यूएस का, ये अलास्का है, ये कनाडा है, ये यूएसए है. यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक ऐसे फॉल्ट है, एक फोर्स इधर से काम करती है, एक फोर्स इधर काम कर रही है, दोनों पैरेलल काम कर रही हैं, एक इधर जा रही है, एक इधर जा रही है, लेकिन दोनों में क्रैश नहीं होता, क्लैश नहीं होता, बट दोनों क्रैक कर देती हैं, एक तरह से फॉल्ट बना देती हैं. इसको ट्रांसकरेंट फॉल्ट कहते हैं. अब अगला हमारा टॉपिक है लैंडफॉर्म क्रिएटेड बाय फॉल्ट या फॉल्टिंग. अगला हमारा टॉपिक है लैंडफॉर्म क्रिएटेड बाय फॉल्टिंग या फॉल्ट. लैंडफॉर्म
created by fault. By fault. फॉल्ट के द्वारा जो लैंडफॉर्म बनते हैं उसके बारे में हम बातें करें तो नंबर 1 पे हमने लिखा भ्रंश घाटी यानी रिफ्ट वैली या ग्रेबन। नंबर 1 पे हमारा जो है क्या है कि रिफ्ट वैली या क्या कहते हैं भ्रंश घाटी यानी कि ग्रेबन। ग्रेबन बनता है फॉल्ट से। फॉल्ट से ग्रेबन इस तरह से बनता है when central block is subsided while side blocks remain at its original place create a rift valley। जब सेंट्रल ब्लॉक जो है जब सेंट्रल ब्लॉक while central block subsided while block at both the margin both the side remain intact remain at its original place create a rift valley या ग्रेबन। these ग्रेबन या रिफ्ट वैली से नर्मदा, ताप्ती, दामोदर, Rhine valley, these are the when central block subside but block of both the side remain stand still create a rift valley। तो इसमें क्या होता है सेंट्रल ब्लॉक subsided while blocks या margin at both sides remain stand still create a graben create a rift valley। अब एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम इसको समझने की कोशिश करते तो इसको कुछ इस तरह से समझ सकते हैं। मान लें ये छोटा नागपुर प्लेटू है। छोटा नागपुर प्लेटू में हमने देखा होगा यहां पे ऐसे दामोदर सारो ऑफ बंगाल कहलाती थी, अब नहीं रह गई, दामोदर। ये छोटा नागपुर प्लेटू पे दामोदर रिवर फ्लो करती है। दिस इज द हजारीबाग प्लेटू, बाग प्लेटू, दिस इज द रांची प्लेटू। और ये जो बीच वाला हिस्सा हमारा है ये क्या है हमारा दामोदर रिवर है। दो प्लेटू को बीच में कोई हिस्सा जब सबसाइड हो जाए, नीचे चला जाए, सबमर्ज हो जाए और रिफ्ट वैली क्रिएट करती है तो ये दामोदर रिवर हो गई। अगला एग्जांपल मैं इसी का अगर और बनाता हूं, राइन वैली इन जर्मन आल्सो ए रिफ्ट वैली। नेक्स्ट अगर ब्लॉक इसका बनाया जाए तो नर्मदा एंड ताप्ती। सपोज दैट दिस इज द विंध्यांचल रेंज, दिस इज द सतपुरा रेंज, इस तरह से दिस इज द विंध्यांचल रेंज। मान लीजिए नॉर्थ में थोड़ा पड़ेगा विंध्यांचल, नर्मदा रिवर वैली रिफ्ट वैली, सतपुरा रेंज, ताप्ती रिफ्ट वैली या ताप्ती रिफ्ट वैली, विंध्यांचल, सतपुरा एंड अलोरा अजंता हरिश्चंद्रा रेंज, अलोरा अजंता एंड हरिश्चंद्रा। उसके बाद एक यहां पे स्टार्टिंग में जो आपका गोदावरी है वो भी रिफ्ट वैली है। महाराष्ट्र में जहां से निकलती है गोदावरी वहां पे भी
और यहाँ पे अगर अजंता लोरा तो यहाँ हरिश्चंद्रा या कोई माउंटेन पड़ जाएगा। तो दीज आर द रिफ्ट वैलीज, दीज आर द ग्रेबन्स। ग्रेट रिफ्ट वैली इन अफ्रीका, it extended from Africa through the Red Sea up to the Dead Sea in Jordan, and Jordan River up to the Jordan River. This is the Great Rift Valley. These are the Graben. Rift Valley मतलब ग्रेबन, ये आपका रिफ्ट वैली, ये सबसाइड हो गई। अगला हमारा इसमें जो फीचर्स बनता है, ब्लॉक माउंटेन या हॉस्ट माउंटेन। वेन सेंट्रल ब्लॉक, नेक्स्ट हम अगर हमारा बनाते हैं डायग्राम इसका, अगर मिटा देते हैं यहाँ पे इसको, नेक्स्ट हमारा है फीचर्स ब्लॉक माउंटेन और हॉस्ट माउंटेन। वेन सेंट्रल ब्लॉक्स remain intact, remain at its original place, while side block subsided, create a block mountain। इसको अगर हम मिटा देते हैं, when central block remain at its original place, while side block is subsided, create a block mountain। This is the block mountain। The central block is remain as intact, remain as at its original place, while side block subsided, create a block mountain। The block mountain की मिसाल अगर हम देते हैं तो हमारा जो है सतपुरा, ओसजेस इन फ्रांस एंड ब्लैक फॉरेस्ट इन जर्मन। मान लीजिए कि ये रिवर वैली है, इस तरह से एक रिवर फ्लो करती है, यहाँ पे ये जो हमारा है ओसजेस है, ओसजेस है, ये हमारा ब्लैक फॉरेस्ट है, ब्लैक फॉरेस्ट है। ओसजेस इट इज सिचुएटेड इन फ्रांस, इन फ्रांस, ब्लैक फॉरेस्ट इन जर्मन, जर्मन। This is the Rhine Valley. When Rhine Valley coming from the Switzerland, Alps of the Switzerland, it enter in the bordering areas of the France and German, it create a Rift Valley। ये जो ब्लॉक माउंटेन है यहाँ पे देखा हमने कि ओसजेस ये फ्रांस में है, एक साइड में जो है हमारा ये ब्लैक फॉरेस्ट है जर्मन में, इसको हम कहते हैं। उसके अलावा सतपुरा भी हमारा जो है एक तरह से ब्लॉक माउंटेन है, क्योंकि नर्मदा जो है इधर से है और दूसरे साइड में हमारी जो है, अगर इसको इस तरह से डायग्राम बना लें, मान लेते हैं कि दिस इज़ द विंध्याचल, इट्स मे बी द इट इज़ आल्सो द ब्लॉक माउंटेन, दिस इज़ द नर्मदा रिवर, दिस इज़ द विंध्याचल, दिस इज़ द सतपुरा, दिस इज़ द ताप्ती। तो दिस इज सतपुरा, इज द ब्लॉक माउंटेन, इज द हॉस्ट माउंटेन। हमने जो है आज पढ़ लिया फोल्ड के बारे में, फॉल्ट के बारे में, और इस तरह से जो फोर्सेस हैं, इंडोजेनेटिक फोर्सेस एंड एक्सोजेनेटिक फोर्सेस, और उनके द्वारा जो डिफरेंट फीचर्स बनाए गए उनके बारे में बातें की। अब यहीं पे हम एंड करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक्स होगा वो प्लेट टेक्टोनिक एंड उससे रिलेटेड जो टॉपिक्स होगा उसके बारे में बातें करेंगे। ओके भाई, ऑल दी बेस्ट।